What is up everyone? Thanks a lot for joining the stream. डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ऐसी ऐसी चीज़ें भेज सकते हो जिसके बारे में हम स्ट्रीम पे बात करेंगे, अलग अलग चीज़ें. या फिर मीम्स भी भेज सकते हो यहाँ पे जाके. अलग अलग मीम्स, सारे मीम्स इंस्टाग्राम से आ रहे हैं. सो दिस दैट. आज की स्ट्रीम बहुत छोटी होने वाली है, लाइक योर डिक, क्योंकि कल सुबह सुबह हमका जाना है. कल सुबह ही हमको जाना है शूट करने, और उसके बाद परसों भी मैं वहीं पर हूँ. एंड तरसों यानी कि 17 तारीख को अगली स्ट्रीम होगी. वट आई वॉन्ट टू चेक इज हैरी सिंह. क्या हाल है मेरे भाई? थैंक्स फॉर जॉइनिंग. वट आई वॉन्ट टू सी इज, आई आज शाम को मुझे पता लगा लाइक ईरान ने कर दिया अटैक. अटैक नहीं, एक एयर स्ट्राइक करी आई थिंक. एंड दे वर लाइक कि हम यहाँ पर करेंगे आई गेस, एंड दिस इज जस्ट अ रिस्पॉन्स टू वट यू डिड, सो डोंट डू दैट अगेन. I want to see what is the response from Israel side. Iran launches hundreds of missiles, drones in first direct attack on Israel. Netanyahu क्या कह रहा है? Netanyahu क्या कह रहा है? Israel-Iran war news live update. US will not take part in retaliatory action against Iran. White House says Iran attack on Israel. US will not take a part in retaliatory action against Iran. White House says President Joe Biden warned Prime Minister Benjamin Netanyahu that US will not take part in the counter-offensive against Iran if Israel decides to retaliate for a mass drone and missile attack on Israel territory overnight, a White House official said. And the threat of open warfare erupting between the arch Middle East force and dragging in the United States has put the region on edge, triggering not region, the entire world, I would say. Triggering calls for restraint from global powers and Arab nations to avoid further escalation. US media reported earlier on Sunday that Biden had informed Netanyahu that he would not participate in retaliatory action. You just have one news, just भाई साहब, एक चीज़ को अलग अलग तरीके से मत मतलब वो करो प्लीज़. What does Netanyahu say? Yahoo! Iran's attack on Israel stirs aspiration among Gaza Palestinians. This does not want Middle East. All right. Iran attack on Israel. A French embassy in Iran recommends its citizen to temporarily leave Tehran. Okay. Fuck. Not good. Not good. هيا طلع شباب هلا بدون صوت. الله اكبر يا حبيبي. Imagine you're sleeping and suddenly you start hearing a war siren and you look out of the window, you see rockets intercepting drones and shit. वैसे क्या हुई तो? التاج هذول بالتاج على مش ورا التاج كمان هذول. الله يجيرنا يا رب، الله يجيرنا. الله يجيرنا يا رب، الله يجيرنا. भैंस की आँख. भाई साहब. What did Israel say? What did Netanyahu say? Israel says 300 Iranian drones and missiles downed. Unprecedented attack. Well, did they not warn you? Israel said it identified 300 threats of various types and eliminated 99% of those bound for Israel soil, according to basically, all right. According to an update from Israel Defense Forces, a spokesperson, Iran raided drones. Okay. Israel said it's identified. Okay, threats of various types. According to an
Update from Israel Defense Forces spokesperson. Fuck you. What is their position right now? And have been in the course of direct conflict since the start of Israel's military campaign in the Gaza Strip, which came in response to Hamas terror attack on October 7th. All right. Not. So maybe they haven't responded. Response. To Iran. Did they say anything? Israel's response after Iran missile. Okay. The Iranian regime has led the entire Middle East to the edge of abyss with its eyes wide open. Babak said, "Okay, who is this? What is this?" Federal Minister of Foreign Affairs of Germany. Oh, okay. The Iranian regime has led the entire Middle East to the edge of the abyss with its eyes wide open, said statement Sunday. Okay, the foreign minister said Tehran would have plunged an entire region into chaos had it not been for Israel's effective air defenses and strong partners. Okay, so yeah, Poland's Prime Minister Donald Tusk also weighed in on the wider security consequences, saying that while the situation does not pose a direct threat to Poland at the moment, it is clear that the entire world is on the brink. Fucking hell. Spain's Prime Minister said Sunday the world leaders had been united in the call for responsibility or restraint following the attack. All right. Bhai sahab, if you didn't know that how, but like we are very self-absorbed, all of us generally अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा self-absorbed होते हैं ना कि ये मेरा वो, like if you didn't know, now you know कि how little we matter, like we as individuals in the grand scheme of things. Of course we don't मतलब ऐसा नहीं है कि we don't matter much in our own lives, in lives of people close to us, but in the grand scheme of things. Did you know Putin is threatening Joe Biden to not interfere in this issue? Is he? Can you link me? One of the intercepted missiles from the Iranian attack on Israel at Dead Sea. They shot 88 tons of explosive in some 99% intercepted. Bas ki aankh. शिवदीप ने क्या भेजा? यो जैनम, वाई गैप ऑफ 2 days? यार गैप ऑफ 2 days क्योंकि भाई शूट पे जा रहा हूँ मैं, कल सुबह निकल रहा हूँ, आज भी बहुत छोटी स्ट्रीम है. क्या हाल है मेरे भाई? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम. आज बहुत छोटी स्ट्रीम है, अभी आधे पौने घंटे में निकल जाऊँगा मैं. डू यू प्ले चेस? आई डोंट प्ले चेस. कसम यार, ये देखा तुम लोगों ने भैंस की आँख यार. जस्ट लुक एट दिस शिट. fucking place erupted. मोहित, हाँ डार्लिंग, क्या हालचाल? बढ़िया. तुम कैसी हो मोहित? तुम सुनाओ. यूट्यूब चैनल WION, ये कौन सा यूट्यूब चैनल है? Israel strikes down Hamas rockets aimed Iranian threat. Wait, what? 1,125 kilometers an hour to 17,151 kilometers an hour. The Sejal ballistic missile was first tested in 2008. Meanwhile, Iran unveiled the Khorram Shahar missile in 20. बकवास करेंगे और कुछ नहीं है. What to see in this? बोलो ना उसमें क्या था? जन्म बार प्रूव करता था कि जन्म तुम बच्चे हो. ये क्या हो रहा है? This man came to offer prayers at the temple, but the visit didn't end well for him. Wait, what?
निकल दी आराम से खाता तो बहुत है ना यहाँ से कहा तो वजन कम कर ले देखे पवन यहाँ हाथ हाँ पवन The incident took place at Narmada Devi Temple in Madhya Pradesh, Amarkantak village. सपोर्ट दी उधर मैं बता रहा हूँ यहाँ है बस अटक गया क्या ये? ना आराम से पेट न फुला पेट अंदर कर ले ओ इसी फट रही है भाई, अटक गया ये भाई। उत्तरी ऐसे कमर घुमा के अम्मा ऐसे हो ना ऐसे यार ऐसे ये वाला बात हाँ ऐसे कमर घुमा के अच्छा ऐसे करने को कह रहे हैं उसको। अम्मा ऐसे हो ना ऐसे यार ऐसे ये वाला बात हाँ This man got stuck under a small elephant trap. Oh my god. तुझे क्यों लग रहा था तू बहुत ज़्यादा पतला इंसान है, फिट इंसान है? वीडियो तो बताऊँ, मैंने सिर्फ ऑडियो सुना आपके बोलते हुए। आई वॉज इन अनदर टैब। ओह ओके, दिस थिंग। That was a bad knockout, a brutal one. यार, I feel bad for Gaethje. I think हर कोई in the starting before this fight, everyone was feeling bad for Holloway कुछ हद तक. Now everyone is feeling bad for Gaethje. But you know that's the fucking world. Fucking hell, dude. That's MMA. मैं कभी ये सब देखता ही नहीं। हाँ पता है जानम, बच्चे हो तुम छोटे बच्चे हो बेटा। हाँ ओके, वो यहाँ नहीं मिला ना कुछ। पुतिन ऑन बाइडन। आई प्ले दिमाग वाली गेम्स लाइक चेस। ऑलराइट, कंग्रेचुलेशंस on Biden. Putin wants Biden not to interfere. Oh, okay. So, एक second. You should fucking warn him when he's interfering in your conflict with Ukraine, right? Oh my God, why? 25 Oh kilometers shit. per hour to about 17,151 kilometers an hour. Iran attacks Israel live. Putin wants Biden against attacking Iran. Says won't sit and do nothing. पूछ रहा हूँ भाई, आपकी अ नाइट ऑफ पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा है भाई? So yes, all right. So okay. If Biden supports Israel, we will not sit idly and do nothing, roars Putin. Iran's massive drone and missile strikes came after days of speculation that Tehran will avenge IRGC commanders who were killed in Israel strike in Damascus. भाई आपकी अ नाइट ऑफ मूवी का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ यार, अभी वहीं फिल्म फेस्टिवल सर्कल्स में ही है। ऑलरेडी स्लीपी। कल से अभी तक कम सो के मैंने थोड़ा सा वो करा है, क्या कहते हैं, अपना शेड्यूल चेंज करने की कोशिश करी कि अभी मुझे आधे पौने घंटे में नींद आ जाए अच्छे से, एंड फिर मैं उठ के आराम से जाऊँ। आई वॉन्ट टू वॉच दिस। यो ध्रुव, क्या हाल है? मेरे जिगर के चल रहे हैं। 2024 को हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार पर भड़क गया क्योंकि उन्होंने पतंजलि के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था अपने मिसलीडिंग एड्स के लिए। हम ये देखकर हैरान हैं कि फाइल को केवल आगे बढ़ाने के अलावा कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ एक तरफ कई लोग बहुत खुश थे कि फाइनली किसी ने तो पतंजलि के खिलाफ बोला क्योंकि इस कंपनी ने कई इंडियन कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है। दूसरी ओर अर्नब गोस्वामी जैसे लोग पूछते थे कि सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के बारे में इतना बोल रहा है पर कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनीज के बारे में क्यों नहीं, जो भी मिसलीडिंग एड्स बनाती है। If the threat is that Patanjali misled an Wait, what the fuck? Oh my god, I really don't like this guy now. YT पे या OTT पे कब डालोगे? देखता हूँ यार, जहाँ बात हो पहले के कहाँ डालनी है। अगर कहीं बात नहीं हो तो YT है ही, अगर OTT पे बात होती तो आई लेट यू नो फॉर श्योर।
Okay, I didn't like this guy because he yells, but this is a stupid take. This is a very stupid take. कि सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के बारे में इतना बोल रहा है पर कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनी के बारे में क्यों नहीं जो Next 117. Yes यार मैं जा रहा हूँ कल एंड परसों मैं बाहर हूँगा. I wouldn't be फरीदाबाद में. तो yeah. भी मिसलीडिंग एड्स बनाती है. If the threat is that Patanjali misled, and I agree they may have. The problem is germinated in one company, we diagnosed in one company, symptomatic in one company, but the fact is there are several other companies, FMCG companies doing all that. हाँ ये सही बात है. हमें उन सारी कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो एड्स के जरिए दूसरों को बेवकूफ बना रही है. और सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उस कंपनी के लिए होनी चाहिए जो इंडिया के सबसे टफेस्ट मेडिकल क्राइसिस के दौरान एक ऐसी दवाई बेच रही थी जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था. कि देखो ऐसा मतलब this is so fucking stupid कि तुम एक पेंडेमिक के दौरान जहाँ लोग मर रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, एक चीज़ की वजह से तुम उस चीज़ की दवाई बेच रहे हो which is not tested, which is not even a cure, and you're claiming it to be the cure and the prevention. You're claiming it to be the fucking vaccine and the cure. Like, how retarded do you have to be to not understand the difference between Red Bull gives you wings versus कि भाई ये तुम्हारा कोविड ठीक कर देगी. How stupid do you have to be to not understand that difference? क्या शूट करने जा रहे हो थोड़ा बताओ तो जरा. क्या कुछ बड़े यूट्यूबर के शूट पे जा रहे? नहीं कोई यूट्यूबर के शूट पे नहीं जा रहा ब्रो. आई ओके. कोरोना किसी से पूछ के आता नहीं तो बिना पूछे भी लोगों को कोरोना ठीक हो जाएगा. मैं बात कर रहा हूँ पोलोनल की जिसे पतंजलि ने 4 महीने के अंदर 250 करोड़ की सेल्स करी. हाँ 250 करोड़ की सेल्स. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने मानो पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी अपने एड से. और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है. यह पतंजलि गिलोय धनपति एक आयुर्वेदिक दवाई. और जब लोगों ने इस दवाई को खरीदा मार्च 2018 में उनको एक सदमा पहुंच गया क्योंकि मार्च 2018 में इस दवाई पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई थी अप्रैल 2018 की. पतंजलि के साथ कोई एक कंट्रोवर्सी नहीं हुई बल्कि पतंजलि की कहानी ऐसी कहानी जहां उन्होंने कई लीगल बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करी. और Why the fuck is that a reporter is saying what he just said? जहां उनको मदद मिली हमारे देश के मिनिस्टर्स और न्यूज एंकर से. पतंजलि की अब वैल्यूएशन करीब 50,000 करोड़ हो गई है. Oh that's why. Okay ठीक है. और उनको कई फॉरेन कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिल रही है. इस कंपनी ने ये सब किया कैसे इसको समझने के लिए आपको एक लड़के की कहानी जाननी होगी जिसका नाम है रामकिशन. हमने कोरोना बना ये अभी वही चीज है तो पहले इम्यूनिटी बूस्टर थी अब दवा के दोगी. बाबा रामदेव आपने ये गलत दावा किया बोलते कि आप कोरोना से इलाज करनी चाहिए. बाबा रामदेव की बचपन की जिंदगी के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है नहीं. जो जानकारी हमें मिली है वो बस इन किताब से मिली है जिनमें से एक को तो बैन कर दिया गया था. आर्ट्स गुरुकुल खानपुर जो कि नारनौल हरियाणा में है. ये है आर्ट्स गुरुकुल. हरियाणा के नारनौल शहर में एक आर्य समाज स्टडी सेंटर. 1987 में पास वाले गांव से एक छोटा सा लड़का आर्ट्स गुरुकुल पहुंचा. इस लड़के का नाम था रामकिशन जो अपने घर से भाग कर आया था. रामकिशन का एक्चुअली किस साल में जन्म हुआ था वो क्लियर नहीं है. कहा जाता है कि 1965 से 1975 के बीच उनका जन्म हुआ था हरियाणा के एक गांव में. इस लड़के का बहुत मुश्किल बचपन रहा है. उनके पिताजी के पास ज्यादा पैसा नहीं था और उनके 4 बच्चे भी थे. राइटर प्रियंका नारायण ने कहा कि वो बहुत ही कमजोर लड़के थे. रामदेव अपनी एज नहीं बताता राइट. आई थिंक ही डजंट नो. आई ट्रूली थिंक ही डजंट नो एग्जैक्टली एज क्या होगी उसकी. जिनकी मानो छोटी सी उम्र में कई बार मौत होने वाली थी. और छोटी सी उम्र में उनको एक पैरालिसिस का अटैक आया जिस वजह से उनकी फेस की मसल्स काम नहीं करने लगी और उनकी आंख में भी प्रॉब्लम है. उनकी मां उनका इलाज करना चाहती थी मॉडर्न ट्रीटमेंट के जरिए पर उनकी दादी ने मना कर दिया. बाबा उनको क्या पता था इलाज मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं शिल्पा शेट्टी है. रामदेव के बड़े भाई ने कहा क्योंकि दादी बहुत ही सुपरस्टिशियस थी और मानती थी कि ये अटैक माता की वजह से हुआ है. स्कूल में भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था क्योंकि बच्चे उनको बहुत चिढ़ाते थे उनकी आंख की वजह से. इन मुश्किलों के बावजूद उनको पीस मिला रामदेव है तो ओजीबी. जब उनकी मुलाकात हुई आर्य समाज के प्रचारकों से. आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है जिनका एक मकसद है योग और वेद को प्रमोट करना. उनके इलाकों में आर्य समाज का एक बहुत बड़ा बोलबाला था और उनके फैमिली मेंबर ने बाबा रामदेव को इन प्रचारकों से मिलाया था. ये बहुत अच्छी टाइमिंग थी बाबा रामदेव के लिए क्योंकि स्कूल में उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. उन्होंने कहा कि उनको रियलाइज हो गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन उनके लिए सही नहीं है और वो बल्कि दिमाग में हमारे ये डालने की कोशिश करते हैं कि वेस्टर्न चीजें ही सही है. ये आर्गुमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाबा रामदेव यही चीज पतंजलि की मार्केटिंग में भी यूज करते कई साल बाद. खैर स्कूल में उनका मन नहीं लगा था तो उन्होंने अपनी किताबें ली और जंगल में फेंक दी. जिसके बाद वो पहुंचे आर्ट्स गुरुकुल में. गुरुकुल में आने के बाद इस लड़के ने अपना रामकिशन का नाम त्याग दिया और अपने आप को बुला. Why the fuck do we have this Western knowledge, Eastern knowledge? Who gives a fuck? Knowledge is fucking knowledge. Why not just accept knowledge as it is? खैर I'm being stupid. ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते. क्या ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं? Please tell me ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते. These are just some of the few extreme examples. I'm only saying that because I think अब ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते. I think ज़्यादातर लोग ये चीज़ें करना शुरू हो चुके हैं. ज़्यादातर लोग हो चुके हैं शुरू भाई कि ये वेस्टर्न चीज़ें तो बेकार हैं. हमारे यहीं पर सब कुछ बढ़िया था भाई. बढ़िया था लेकिन अभी वी डू डेफिनेटली हैव बेटर थिंग्स. व्हाई आर यू स्टिल यूजिंग फकिंग कंप्यूटर्स माइक्स एंड एवरीथिंग? ऑल ऑफ दिस कम फ्रॉम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी. व्हाई नॉट रिनाउंस ऑल ऑफ दिस एज वेल? If you just want to stick to what we had, what we used to do, if you don't want to go forward, take the principle, take the morality, take all the good things there are, leave all the things which are not good, accept all the good things from other cultures as well. क्या दिक्कत है? मैं particularly पढ़ना नहीं आता मुझे. Giloy was being sold for a second dose of vaccine in fuck man fuck. ये है भी क्या Giloy? मुझे ये भी नहीं पता. लाने लगे वो रामदेव. इधर उन्होंने अध्यायी उपनिषद आयुर्वेद और वेद में पढ़ाई करी. कुछ महीने बाद एक दूसरा लड़का उस गुरुकुल में आया, बालकृष्ण. बालकृष्ण के पिताजी नेपाल से आए थे एक लेबरर के तौर पे और उनको इस गुरुकुल के टीचर ने कहा कि आप अपने लड़के को इस गुरुकुल में भर्ती क्यों नहीं कर लेते. ये दोनों लड़के मिले और बहुत अच्छे दोस्त बन गए. कई समय वो वेद योग और आयुर्वेद Yes, why are you wearing sunglasses, my guy? की बातें करते.
बाबा रामदेव का योग में बहुत इंटरेस्ट हुआ, इस वजह से वो हिमालय की तरफ चले गए ध्यान करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उन्होंने 3 साल गंगोत्री में बिताए, फिर वो गए हरिद्वार और 1993 को वो अपने दोस्त बालकृष्ण से वापस मिले। जिस दौरान बाबा रामदेव हिमालय में ध्यान कर रहे थे, बालकृष्ण को एक नए गुरु मिले, आचार्य करमवीर, और इन तीनों लोगों ने ही कुछ साल बाद पतंजलि बनाई। आचार्य करमवीर बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कई चीजें सिखाने लगे, जैसे वो कई लोगों को एक साथ योग कैसे सिखा सकते हैं। इसके बाद बाबा रामदेव गंगा किनारे 2 लोगों को योग सिखाने लगे, जिसमें से एक आदमी एक गुजराती बिजनेसमैन था जो बाबा रामदेव को सूरत ले गया ताकि उधर वो 200 लोगों को योग सिखा सके। फिर ऐसे कैंप्स बाबा रामदेव ने पूरे देश में करवाए। 1994 में एक कैंप ऑर्गेनाइजर ने बाबा रामदेव को 5000 रुपए दिए कि आप मेरे लिए प्लीज आयुर्वेदिक मेडिसिन बना लीजिए उन बीमारियों के लिए जो असम में होती है। फिर बाबा रामदेव, बालकृष्ण और करमवीर ने महासुदर्शन चूर्ण के कई पैकेट्स बनाए जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और वो असम की तरफ चले गए इस दवाई को देने के लिए। असम के कई लोग इस चीज से बहुत खुश हुए, और बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने सोचा कि हम ये चीज हरिद्वार के लोगों के लिए क्यों ना करें, और इस चीज को करने कैपिटलिज्म। के लिए उनको एक आदमी ने मदद करी, कृपालू बाग आश्रम के आचार्य शंकर देव। आचार्य शंकर देव एक बुजुर्ग साधु थे जो हरिद्वार के कृपालू बाग आश्रम के हेड थे। क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए उनके दिमाग में लगातार टेंशन रहती थी कि उनके बाद उनका आश्रम कौन संभालेगा। वो चाहते थे कि करमवीर उनका आश्रम संभाले, पर करमवीर ये करना नहीं चाहते थे। बाबा रामदेव ने लेकिन एक बार बात करी करमवीर से। असम के कैंप के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि आप आचार्य शंकर देव का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर लेते, अगर आप ये कर लोगे तो हमें एक बेस मिल जाएगा जहां से हम काम कर सकते हैं। करमवीर को ये आइडिया बहुत प्रैक्टिकल लगा, इसलिए उन्होंने असम के जंगलों से एक लेटर लिखा आचार्य शंकर देव को कि वो उनका आश्रम संभालने के लिए तैयार है। आचार्य शंकर देव ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि मैं आपके दोस्तों को नहीं जानता, पर मैं आपको जानता हूं और इसलिए आप पर भरोसा कर रहा हूं। जनवरी 1995 में बाबा रामदेव, बालकृष्ण और करमवीर ने एक ट्रस्ट रजिस्टर किया हरिद्वार में, दिव्य योग मंदिर। अगर आप जानते नहीं हो तो एक ट्रस्ट एक बेसिकली लीगल अरेंजमेंट होता है जहां कई लोग जिनको ट्रस्टीज कहा जाता है वो दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स मैनेज करते हैं जिनको बेनिफिशियरीज कहा जाता है। तो इस ट्रस्ट के जरिए से बाबा रामदेव, बालकृष्ण और करमवीर आचार्य शंकर देव का आश्रम संभालेंगे, और उसके अलावा आश्रम के पास उनकी जमीन थी गंगा किनारे वो भी मैनेज करेंगे। इस ट्रस्ट से ही बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने अपने कनेक्शंस बनाए, जिससे वो कुछ ही समय बाद पतंजलि का एक बड़ा एम्पायर सेट करने वाले थे। पतंजलि की स्टार्टिंग में सेल्स ग्रोथ आ रही थी, वो उनके ऑफलाइन स्टोर आ रही थी, पर अब जमाना है ऑनलाइन शॉपिंग का, और अगर आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं तो आप ओडू की ई-कॉमर्स ऐप यूज कर सकते हैं। ओडू एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है जहां Bro, how did you bring dislike with software? It's just a YouTube extension. You can find extension for a dislike button or अपने something बिजनेस like के that. डेली ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हो, जैसे कस्टमर्स को मैनेज करना सीआरएम से, इनवॉइसिंग के प्रोसेस को सिंपलीफाई करना, या फिर अपने सेल्स को ट्रैक करना। और ओडू के डैशबोर्ड से आप अपने बिजनेस के सारे डेटा पॉइंट्स एक साथ ट्रैक कर सकते हो। अगर हम ई-कॉमर्स ऐप की बात करें, अगर आपकी एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है तो उसी हिसाब से आप अपना स्टोर बना सकते हो। बस 4 स्टेप्स में आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट का फ्रेमवर्क सेटअप हो जाएगा कुछ इस तरह। वेबसाइट सेटअप होने के बाद आप उधर अपना एक प्रोडक्ट भी डाल सकते हो। न्यू एंड चूज प्रोडक्ट पर क्लिक करके टी-शर्ट का नाम डाल दो, प्राइस डिसाइड कर दो और 18% जीएसटी ऐड कर दो। टी-शर्ट की फोटो डालने के बाद आपका प्रोडक्ट पेज कस्टमाइज हो जाएगा। डिटेल्स में प्रोडक्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन डालना है या फिर यूजर रिव्यूज या आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कौन से कलर्स अवेलेबल है या फिर कौन से साइजेस। एक बार आपने प्रोडक्ट पेज सेटअप कर दिया तो फिर अपने प्रेफर्ड पेमेंट गेटवे को लिंक कर सकते हो स्टोर से, इसके बाद आपका स्टोर लाइव हो जाएगा। तो बस इस तरह आपने अपना स्टोर बना दिया, जिसके बाद आप बेचना स्टार्ट कर सकते हो। वेबसाइट के लिए ओडू आपको एक कस्टम डोमेन भी देगा जो पहले साल के लिए बिल्कुल फ्री है, और जो भी आप पहली ऐप यूज करके ओडू की वो आपके लाइफ टाइम फ्री होगी, और आपको कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग सर्विसेज भी दी जाएंगी। और अगर आपको 2 से ज्यादा एप्लीकेशन यूज करनी है ओडू की तो आप उनका पेड प्लान ले सकते हो जो 580 रुपए से स्टार्ट होता है, जो जोमेटो या फिर स्विगी ऑर्डर से भी कम हो सकता है। तो अगर अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है ओडू को चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब आते हैं पतंजलि पर वापस। तो उन्होंने अपना दिव्य योग मंदिर का ट्रस्ट रजिस्टर किया और एक मिशन डिक्लेयर किया। मिशन था लोगों को योग सिखाना जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो। फिर बाबा रामदेव और करमवीर आश्रम में योग सिखाने लगे। ये योग की क्लासेस बहुत पॉपुलर होने लगी और कई पावरफुल लोग भी योग सीखने के लिए आए। योग की पॉपुलैरिटी देखते हुए बाबा रामदेव और करमवीर ने हरिद्वार के लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए योग का कैंप ऑर्गेनाइज किया। इस एक हफ्ते के कैंप में पुलिस के सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट भी है। जर्नलिस्ट प्रियंका पाठक नारायण ने कहा कि इस कैंप के बाद बाबा रामदेव ने एक स्ट्रैटेजी बनाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस से दोस्ती करने के लिए, चाहे वो पावर में हो या फिर ना हो। जहां बाबा रामदेव और करमवीर योग में अपनी मेहनत कर रहे थे, बालकृष्ण किसी और चीज में बिजी थे। बालकृष्ण स्टार्टिंग क्या होता है YouTube extension? यार extensions basically एक तरीके Let's से talk about- applications होती हैं which help the browser. YouTube की नहीं होती, browser की extensions होती हैं. Just look at dislike button extension or something like that. The world's biggest election. It's happening in India. 970 million voters, more than 2,600 political parties, and one likely outcome. 5 more years of Prime Minister Modi. It is safe to assume that Narendra Modi is headed for a third term. Modi's approval rating makes him the most popular leader in the world right now. Well, we have Bollywood stars in India. Modi has probably surpassed them in terms of popularity. He gets a lot of credit for India's booming economy and its growing status on the world stage. But some people are worried about the direction the country is going in. They say Modi and his party are changing India's democracy into a more authoritarian state, one that prioritizes India's majority Hindu population and threatens minorities, especially Muslims. So there's no doubt that Modi's government has attacked some of the key features of India's democratic setup. The fear is that the democracy in our country is slowly sleeping. So here are 5 things to know to help you understand what's going on in India and why this election is such a big deal. Why does this girl sound like an AI voice? The first thing to get your head around is the sheer scale of holding an election in a country of 1.4 billion एक से normal speed में कैसी है? people. The number of registered voters in India is more than all the voters in these 7 countries, which also have elections this year. It's weird sound. It'll take 15 million election workers, more than 1 million polling stations, and it's happening in 7 phases from April to June, with different parts of the country voting at different times. It's always a grand democratic exercise, and you have every year stories of folks taking up electoral voting machines to tiny places where there's only 3 or 4 people voting, but they make the effort to cross rivers and climb hills to get there. Now, India is a parliamentary system, like the UK, for example. People will be voting for candidates to represent them in the lower house of parliament. There are 543 seats, and the political party or alliance that gets a majority forms a government and chooses the prime minister. The next thing you need to know is who's up against who. There are thousands of parties running, but here are the key players. There's the ruling BJP, that's Modi's party. It leads a political alliance of several other parties, but has been able to get a majority on its own in the last 2 elections. This time, Modi has set a target for an even bigger win. He wants 370 seats for the BJP alone and 400 with his allies. On the opposition side, you've got the Congress party. It dominated Indian politics for decades, but these days it's much weaker, and it's linked up with a bunch of other parties to take on the BJP as the India alliance. The fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India.
And this is why we came up with the name. That's Rahul Gandhi. He's seen as the leader of the Congress Party, and he's from India's most famous political dynasty. His father, grandmother, and great-grandfather were all prime ministers. Now, Rahul Gandhi might be the face of Congress, but he's not the official leader of the India Alliance. It's not yet clear who that is. The India Alliance has got entangled in leadership issues, squabbles over programs, squabbles over agenda, and it hasn't really gained traction. Contrast stupid. that with the BJP and Modi, who's both really popular and powerful. Let's run through some reasons that explain his appeal. King bhai. Modi's from a pretty modest background, not a political dynasty. He projects himself as a decisive leader who gets things done, a break from the coalition governments that came before him when there was a lot of infighting and corruption scandals. In a certain way, he conveys an image of integrity, probity, and transparency. India's economy is also doing really well right now. It's the fastest growing major economy in the world. At a time when the global economy is still struggling, India clearly has a better record under Modi in the last few years. Quick disclaimer, not everyone in India is necessarily feeling the benefits. Young people especially are struggling to find jobs. Rahul Gandhi's made that a big part of his campaign, and thousands of farmers have been protesting because they can't make a decent living. But Modi also talks about how his policies have lifted millions out of poverty. No problem. Joffrey Bear. I don't know Joffrey कहाँ पर है? Might be busy. Under one government program, 800 million people receive a free ration of grain every month, and there's no doubt who it's coming from. Many people also approve of the way Modi has raised India's profile internationally through things like hosting the G20 summit and international tours where he's often received like a rock star. Well, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome the Prime Minister made. Modi's also positioning India as a space power. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. India is on the moon. It becomes another element in the broader idea that under Modi, India is rising, India is growing. He's popular because he's macho, he talks business. That muscular image is very important, and it seems to go down well with a lot of Indians. Now, there's another key part of Modi and the BJP's appeal, and it really deserves its own section, and that's Hindutva, a political ideology that promotes Hinduism as the dominant political and cultural force in India. Hindus make up 80% of India's population. The next biggest group is Muslims, and there are also significant numbers of Christians and Sikhs. They're all considered minority communities, but we're talking about millions of people. Now, when India became independent in 1947, it was established as a secular democracy, so the state is not meant to favor any one religion. But many accuse Modi and the BJP of trying to change that by pushing policies that favor the Hindu majority. Hindutva is broadly the ideology of the BJP, and it's based on the sense that India ought to be a land run by and for the Hindus, while minorities may still be a part of this fabric. कल सपने में साहस पुरस्वनी कौन है साहस पुरस्वनी भूल गया मैं अच्छा okay that guy आए fuck you king. It is one that imagines a Hindu state in the way that Pakistan is, for example, a state for Muslims. It is very important to make a distinction between Hinduism and Hindutva. You have practicing Hindus who go to temples, practice rituals, but they don't necessarily subscribe to the BJP's ideology, which is underpinned on political Hindutva. People point to many examples of the government platforming Hinduism in a very public way, like the opening of the Ayodhya temple. Hindus believe the site was the birthplace of one of their most prominent gods, Ram. But a mosque stood there for hundreds of years, until 1992, when Hindu mobs tore it down. That led to nationwide communal riots that killed at least 2,000 people, mostly Muslims. For years afterwards, it was the subject of a bitter land dispute over who the land actually belongs to, but now the temple is in place. And in January, Modi led the opening ceremony, delivering on what had been a core pledge of the BJP for years. The BJP sees it as a milestone in its history. Being present at very clearly religious events and platforming those as being definitive about India is quite new and a big part of Modi's appeal. But it's a big part of the criticism too. And that brings us to our last point, why some people are fearful about the direction that India is going in under Modi's leadership. Let's start with the media. The government and its supporters are accused of controlling the messaging, in traditional media and online, squeezing out critical voices. Reporters Without Borders says violence against journalists, the politically partisan media, and the concentration of media ownership all demonstrate that press freedom is in crisis. The mainstream media has been completely co-opted by the government. In fact, rarely do you... भाई हटविनवाल की भाईचारा on top Elvish versus Maxine controversy वाली वीडियो देखी नहीं यार वो नहीं see a report which calls the government to account. If you open any TV channel or a newspaper, there's only Mr. ये देख रहा से हूँ आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्टेड थे और वो आश्रम में एक आयुर्वेद का क्लिनिक खोलना चाहते थे जिसका नाम होगा दिव्य फार्मेसी पर एक प्रॉब्लम थी ना उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी ना फॉर्मल डिग्री और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के हिसाब से किसी को भी एक लाइसेंस होता है एक आयुर्वेद का क्लिनिक या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए पर दिसंबर 1995 में उनको एक सोल्यूशन मिल गया अपनी दिव्य फार्मेसी के लिए उनको एक बुजुर्ग सन्यासी मिले स्वामी योगानंद जिनका असली नाम था एनपी सिंह वो एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे और सबसे जरूरी बात है कि उनके पास एक लीगल लाइसेंस था जिसकी वजह से उनको टेक्निकल सुपरवाइजर बना दिया गया दिव्य फार्मेसी का इसके बाद बालकृष्ण आयुर्वेद के ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर सकते थे फिर बालकृष्ण ने आश्रम में एक आयुर्वेद का क्लिनिक खोला या मेडिकल कंसल्टेशन भी हो रही थी और दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही थी मेडिकल कंसल्टेशन फ्री थी और दवाइयों के लिए पेशेंट्स को पैसे देने थे और यही बिजनेस मॉडल आज भी चलता है 5000 से ज्यादा पतंजलि चिकित्सालय यानी कि क्लिनिक्स हैं पूरे देश में जहां कंसल्टेशन फ्री है पर मेडिसिन के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं इस फ्री कंसल्टेशन मॉडल की वजह से दिव्य फार्मेसी बहुत पॉपुलर होने लगी लोगों के बीच अमीर से गरीब आदमी फार्मेसी में जा रहा था अपनी हेल्थ का चेकअप करवाने पर बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा ब्रेक आया 2000 में देख लो फिर अभी देख लो सास बहू सीरियल देख रहा था इलाहाबाद के जर्नलिस्ट माधव मिश्रा को एक आइडिया आया कि क्यों ना वो एक रिलीजियस चैनल खोले जिसका नाम था आस्था जीवन का आधार जैसे ही आस्था चैनल लाइव गया उसके साथ ही साथ दूसरे लोगों ने भी आस्था चैनल की सक्सेस को देखा और कई डिफरेंट रिलीजियस चैनल्स ब्रॉडकास्ट करने लगे बाबा रामदेव को रियलाइज हुआ कि इन चैनल्स की तो इतनी बड़ी ऑडियंस है तो एक रिलीजियस ब्रॉडकास्टिंग चैनल संस्कार के पास गए उन्होंने उनको 1.5 लाख रुपए दिए और कहा कि मुझे 20 मिनट का टाइम स्लॉट दे दो 6:45 की सुबह का जिसके बाद मानो पूरा देश बाबा रामदेव के साथ ही उठता देश के करोड़ों परिवार जिनको पहले एक पर्सनल योगा ट्रेनर नहीं मिल सकता था वो अब सुबह सुबह उठने लग गए ताकि वो बाबा रामदेव से अपने घर पर ही योग सीख सके बाबा रामदेव ने पूरे देश में हेल्थ रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया और छोटे से छोटा बच्चा प्राणायाम जानता था कई लोगों ने कहा कि उनकी सेहत पर बाबा रामदेव के योग का एक बहुत बड़ा असर पड़ा है इससे उनके हरिद्वार के आश्रम का भी फायदा पहुंचा कई लोग देश के कोने कोने से आश्रम में जाने लगे योग करने के लिए या फिर दिव्य फार्मेसी से मेडिसिन
लाइसेंस लेने के लिए। बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि वो पॉलिटिशियंस के साथ भी उठने बैठने लगे। 2002 में जब दिल्ली में उन्होंने योग का कैंप किया था तो दिल्ली के तब के चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा और ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी भी उधर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव भी बाबा रामदेव से मिले ये कहने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश में अपने क्लिनिक सेटअप करें। जैसे जैसे बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी बढ़ी, दिव्य फार्मेसी की सेल्स उतनी ही बढ़ती गई। विपिन प्रताप जो आश्रम में काम करते थे 2002-2005 के बीच, उन्होंने कहा कि वो हर रात घंटे बैठते फार्मेसी का पैसा काउंट करने के। मोस्ट ऑफ दिस इज इररिलेवेंट। और मुझे याद है कि एक रात में हमने 22 लाख रुपए कमाए थे। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ उनको बिना उसके करना था, बिना डिग्री वगैरह के वो सारी चीज़ें करनी थी। ऐसी पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे बाबा रामदेव को सामना करना पड़ा अपनी पहली कंट्रोवर्सी से। 2006 में सीपीएम की लीडर बृंदा कारत ने आरोप लगाया कि दिव्य फार्मेसी की कई दवाइयों में इंसान और जानवरों की हड्डियां यूज हो रही है। उन्होंने दवाइयों के सैंपल सरकारी लैब्स में भी भेजे, पर इसी दौरान कई बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस बाबा रामदेव को डिफेंड करने आए। इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव ने तो ये तक कहा कि क्या फर्क पड़ता है अगर दवाई में हड्डियां हैं, अगर वो दवाई काम कर रही है। कोई जानवर का हड्डी हो या मानव का हो, अगर खाने से बचता है तो इसमें क्या अपराध है? अब ये कंट्रोवर्सी भी ज्यादा चली नहीं क्योंकि 2 लैब्स की 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स आई कि दवाई में हड्डियां थी भी या फिर नहीं। इस कंट्रोवर्सी को रिप्लाई करने के लिए बाबा रामदेव ने एक स्ट्रेटजी क्रिएट करी जो वो आज भी यूज कर रहे हैं। क्या है वो स्ट्रेटजी? बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो किया जा रहा है ताकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को फायदा मिले और ताकि आयुर्वेद की बदनामी हो। जर्नलिस्ट कौशिक देका ने कहा कि इस रिप्लाई के बाद बाबा रामदेव मानो स्वदेशी मूवमेंट के चैंपियन बन गए थे। पर वो चीज जो कई स्टार्टअप्स में होती है वही चीज बाबा रामदेव की स्टार्टअप के साथ भी हुई। उनका झगड़ा हो गया अपने को फाउंडर के साथ, करमवीर के साथ। प्रियंका पाठक नारायण ने कहा कि बाबा रामदेव अपनी पॉपुलैरिटी से कुछ भी हो, पतंजलि इज जस्ट अ कमर्शियल ब्रांड। ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ कमर्शियल ब्रांड। द थिंग इज दैट पीपल बाय इनटू दिस, बुलशिट कि अगर तुम पतंजलि को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो तुम भाई अपनी संस्कृति को क्रिटिसाइज कर रहे हो। दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। पतंजलि इज जस्ट अ फकिंग कंपनी नाउ एंड भाई तुम पतंजलि नाम भी खराब कर रहे हो ऐसे हरकतें करके। Like that just shows you have no respect for your own culture. पैसा कमाने लग गए, पर ये चीज करमवीर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक समय बाबा रामदेव के योग कैंप बिल्कुल फ्री होते थे, पर अब आपको पैसे देने होते थे और जितना पास आप होना चाहते स्टेज के उतने ज्यादा पैसे। ये भी दावा किया गया कि बाबा रामदेव ने ट्रस्ट के पैसे से अपने फैमिली मेंबर्स के लिए चीजें खरीदी है। जैसे करमवीर और हरिद्वार के दूसरे लोगों ने कहा कि 2003-4 में बाबा रामदेव ने एक मोटर बाइक और घर खरीदा अपने छोटे भाई राम भरत के लिए और एक घर खरीदा अपनी बहन और उनके पति के लिए। जब करमवीर ने अपने गुरु आचार्य शंकर देव को बताया तो उन्होंने कहा कि आचार्य का दिल टूट गया। इसके बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण के रिलेशन करमवीर और आचार्य शंकर देव के साथ बुरे होने लगे, पर उन दोनों ने कहा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद ही अपना प्लान डिसाइड करना होगा। अब इस समय बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और उनको कई लोगों से सपोर्ट मिल रहा था, जिसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक नई कंपनी बनाएंगे, पतंजलि आयुर्वेद। जिसके बाद इस कंपनी ने इंडियन मार्केट का नक्शा ही बदल दिया। पहले इस कंपनी आयुर्वेदा करके दे आर फीडिंग palm oil and other cheap products to prepare their food products. ने आयुर्वेदिक दवाइयां बेचना स्टार्ट किया। इसके बाद उन्होंने कई अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। बाबा रामदेव के पड़ोसी तरुण कुमार ने कहा कि वो शुरू से ही किसी भी अपॉर्चुनिटी को परखने में बहुत अच्छे थे। ये हमें कई बार दिखा। जैसे 2006 में उत्तर प्रदेश के कई किसान बाबा रामदेव के पास गए क्योंकि बारिश की वजह से उनका आंवला खराब हो गया था। बाबा रामदेव को एक आइडिया है कि क्यों ना मैं आंवला बहुत कम दाम पर खरीदूं किसानों से, जिससे उन किसानों को कुछ पैसा भी मिल जाए और मुझे आंवला मिल जाए। फिर उन्होंने आंवला पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया आंवला जूस बनाने के लिए। ये आंवला जूस बहुत अच्छी तरह बिकने लगा। इसके बाद बाबा रामदेव अपने योग के कैंप में आंवला जूस को प्रमोट करने लगे कि ये जूस कई बीमारियों को सॉल्व कर सकता है। पतंजलि स्वराज, सबको पाएंगे सूट, सेहत के 2 गुण। अपनी किताब में कौशिक देखा हाँ, आके हेल्थ के नाम पे कुछ भी बोल लो तो पॉपुलर तुम हो, लोग खरीद लेंगे, दिक्कत क्या है। रामदेव कह रहे थे कि इनिशियली लोग आंवला जूस पीना नहीं चाहते, पर बाद में वो उन पर विश्वास करने लगे और मानो मैं आंवला जूस का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। अगले साल 2007 में उनको एक और अपॉर्चुनिटी दिखी। आस्था चैनल फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चैनल को खरीद लूं। अब ये चीज बहुत ही चालाक थी क्योंकि कुछ साल बाद ये चैनल बाबा रामदेव की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करने वाला था। 6 साल के लिए पतंजलि कंपनी ने आयुर्वेदिक दवाइयां बेची। 2012 यो रेगुलर स्ट्रीमर यो उबास वाले तो बहुत स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो क्या बताएं भैया, बस जा रहा हूँ, बस बंद करने वाला हूँ। तो में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी मार्केट एक्सपैंड करना चाहते हैं। पहले उन्होंने कई और आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स जैसे बाम या फिर ऑयल लॉन्च करे, फिर टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम, शैम्पू, घी, ऑयल और नूडल्स भी। पर उसके बाद वो मानो पूरे रिटेल सेक्टर में आ गए। धीरे धीरे बाबा रामदेव और पतंजलि को हर जगह देखने लगे, चाहे बिलबोर्ड हो या फिर न्यूज चैनल। और बाबा रामदेव रुके नहीं, कोई ना कोई तरीका उन्होंने जरूर ढूंढा हेडलाइंस में रहने के लिए। बाबा रामदेव ने आज पतंजलि का एक नया ब्रांड परिधान लॉन्च किया है, जहां फुटवेयर, कपड़े, ज्वेलरी हर कुछ अवेलेबल है। इसका पहला शोरूम प्रीतमपुरा दिल्ली में खुला है और मैं वहीं हूं। अभी हमने फटी हुई जींस रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है। एक समय सेलिब्रिटीज उनसे मिलने आते थे। ये क्या बकचोदी भाई, कुछ भी, कसम से कुछ भी। पर अब बाबा रामदेव ही सेलिब्रिटी बन गए। जो गुरु और बिजनेसमैन नहीं, लोगों को एक इकोनॉमिस्ट भी मानते थे। परेशान है लोग पेट्रोल और डीजल के दाम से, और आपने दूध तो बना दिया 2 रुपए सस्ता। पेट्रोल डीजल पतंजलि अगर 2 रुपए सस्ते करवा दे तो बहुत लोग आपके कृतज्ञ होंगे। बाबा जी पैसे के पीछे भागते हो। 2011 में जब उनकी कंपनी ने 163 करोड़ रुपए कमाए थे, 4 साल में ये नंबर 5000 करोड़ हो गया। अब ये कंपनी मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स को चैलेंज कर रही थी। उमेश फड़के जो लॉरियल के इंडोनेशियन यूनिट के सीईओ थे, उन्होंने कहा था कि ये ब्रांड हम सारी मल्टीनेशनल्स को इंपैक्ट करेगी। पतंजलि के साथ लड़ाई करने के लिए कोलगेट को भी हर्बल टूथपेस्ट लॉन्च करना पड़ा। जुलाई 2023 तक कंपनी की वैल्यूएशन 48,245 करोड़ हो गई थी। हाँ, आपने सही सुना, 48,245 करोड़। 3 मेजर कारण थे जिसकी वजह से पतंजलि को इतनी सक्सेस मिली। पहली चीज है ट्रस्ट। कई लोग क्रिएटिव ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, पर इंडिया में शायद ओजी क्रिएटर बाबा रामदेव ही थे। उन्होंने कई साल हर दिन लाखों लोगों को योग सिखाया, जिससे उनकी एक कम्युनिटी बनी जो उन पर बहुत ट्रस्ट करती थी। और इस कम्युनिटी और ट्रस्ट को बाबा रामदेव ने यूज किया अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। 2016 में बंगाल के बेलदा गांव में एक कपड़े के दुकानदार ने कहा कि उन्होंने अपनी दुकान 2 हिस्सों में बांट दी, एक जहां कपड़ा बिकता है और एक जगह जहां पतंजलि के साबुन, बिस्किट, क्रीम, च्यवनप्राश, आंवला जूस, घी और दूसरी चीजें बिकती हैं। इन लोगों ने कहा कि बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट्स के बारे में टेलीविजन में हमें बताते हैं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे हमें। इस ट्रस्ट की वजह से कंज्यूमर्स के बीच एक ब्रांड लॉयल्टी बनी। इसके अलावा पतंजलि के प्रोडक्ट्स कंपटीशन के कंपैरिजन से ज्यादा सस्ते भी थे। 2018 के एक रिसर्च पेपर ने पतंजलि और दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट्स कंपेयर करे और उन्होंने कहा कि पतंजलि के दाम 15 से 30% सस्ते हैं। इसके पीछे कारण ये था कि पतंजलि अपना रॉ मटेरियल्स किसानों से डायरेक्टली खरीदी थी और ना कि मिडिलमैन के जरिए, जिससे
उनके पैसे बचते जाते थे। फिर बाबा रामदेव ने नेपाल के साथ बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशंस रखे, जिसकी वजह से उधर वो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बना सके, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और हिमालय से डायरेक्टली कई जड़ी बूटियां खरीद सके। एक और कारण था कि पूरे देश में उनके कई चिकित्सालय थे, यानी कि क्लिनिक्स, जहां लाखों पेशेंट्स आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलने के लिए जाते थे। इन्हीं क्लिनिक्स में पतंजलि की दवाइयां भी बिकती थी, जिसकी वजह से उनके डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान और सस्ता हो गया था। बाबा रामदेव ने एक और इंपॉर्टेंट चीज यूज करी, स्वदेशी ब्रांडिंग। अभी हमने फटी हुई जींस रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता का? देख लो पहले। बाबा रामदेव ने हर मौके पर बोला कि उनके प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक हैं, ट्रेडिशनल है, भारतीय है, स्वदेशी है। तो आज ही पतंजलि के 5 सूत्रों को अपनाएं और स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान से जुड़ जाएं। इनफैक्ट उनकी टैगलाइन भी थी प्रकृति का आशीर्वाद। उन्होंने अपनी कई स्पीचेस में बोला कि वो स्वदेशी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमें लूटने के लिए आई हैं। स्किन प्रोडक्ट्स के नाम पर बाजार में लूट खसोट चल रही है। पहली बार जो फेयर एंड लवली वाले, उनको फेयर एंड लवली लिखना बंद करवा दिया है हमने। क्या बकवास करते हो तुम? फेयर एंड लवली क्या, कैसे तुम ब्रांड चला सकते हो? अब इधर बाबा रामदेव गलत नहीं थे कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज कंज्यूमर्स को लूटने की कोशिश कर रही थी, पर दिक्कत ये थी कि वो ये आर्गुमेंट अपनी कंपनी की कमजोरियों को छुपाने के लिए यूज कर रहे थे। इधर उन्होंने पेट्रियोटिज्म भी यूज किया कि फॉरेन कंपनीज को पैसे देने से अच्छा है आप लोकल कंपनीज जैसे पतंजलि को पैसा दो। धीरे धीरे पतंजलि का एम्पायर बहुत बड़ा होने लगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में गेस करो उनका रेवेन्यू कितना था? मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। 45,000 करोड़। पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। बाबा रामदेव ने क्लियरली दिखा दिया कि वो बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है, और जहां भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे उधर वो एक्सपैंड कर लेते। पर प्रॉब्लम ये थी कि कुछ एक्सपेंशन की वजह से उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली थी। एक दिक्कत आई थी जब उन्होंने आटा नूडल्स लॉन्च करे। तो आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव नूडल्स बना के दिखा रहे हैं। आज ही पतंजलि का आटा नूडल्स लॉन्च किया गया दिल्ली में। बाबा रामदेव ने खुद लॉन्च किया है। मार्च 2014 में संजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फूड इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मैगी के पैकेट में एक लेबल देखा, नो एडेड एमएसजी। उन्होंने मैगी के कुछ सैंपल्स लिए और जून 2014 में कोलकाता की सेंट्रल फूड लैबोरेटरी को ये सैंपल्स भेजे। उनको क्या पता चला? Around 12 samples were lifted from Lucknow and sent for testing twice. The samples revealed high levels of toxic lead and monosodium glutamate. कि मैगी में लेड की क्वांटिटी 1000 गुना ज्यादा है जो एडवर्टाइज करी जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के कई लोकल न्यूज़ चैनल्स इस न्यूज़ को कवर करने लगे, पर नेस्ले ने कोई एक्शन लिया नहीं। उन्होंने कहा कि लैब के टेस्ट में ग्लूटामेट पाया गया है, जो कई खाने की चीजों में नेचुरली होता है, हमने एमएसजी नहीं डाला। पर करीब 1 साल बाद 6 जून 2015 को इंडियन गवर्नमेंट ने मैगी की सेल पूरे देश में बैन कर दी, जिससे नेस्ले का 500 करोड़ का लॉस हुआ। इस बैन के 4 महीने बाद पतंजलि ने अपने आटा नूडल्स लॉन्च करे, इंडिया की इंस्टेंट नूडल्स मार्केट को टारगेट करने के लिए। पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। इस लॉन्च के 1 महीने बाद इंडिया की फूड अथॉरिटी ने एक नोटिस भेजा पतंजलि को कि आपको तो अप्रूवल मिला ही नहीं है नूडल्स के लिए। बाबा रामदेव ने जवाब दिया, अभी तक एफएसएसआई के गाइडलाइन के अनुसार पास्ता, मैक्रोनी, नूडल और सेवैया, वर्मिसेली ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। तो अभी तक का जो एफएसएसआई का गाइडलाइन है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करें। आगे जो भी गाइडलाइन बनेगा उसको भी हम फॉलो करेंगे। कि पतंजलि सारी रेगुलेशन का पालन कर रहा है। हमारे पास पास्ता बेचने का लाइसेंस है और नूडल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। पर सेफ्टी अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि इंस्टेंट नूडल्स प्री कुक्ड होते हैं तो उनको पास्ता का लाइसेंस नहीं मिल सकता। देश में बस 10 कंपनी के पास ये लाइसेंस है, पर पतंजलि उस लिस्ट में नहीं है। पर इस नोटिस का ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ा नहीं पतंजलि के बिजनेस में। पर ये तो छोटा सा ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी थी। एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं पड़ा? Like why wouldn't that be a big deal? स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारे देश में कंपनीज के एड्स चेक करते हैं कि वो सही है भी या नहीं, उन्होंने पतंजलि पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी जब उनको कई कंप्लेंट्स आने लगी। इसके बाद एएससीआई ने पतंजलि के 33 एड्स इन्वेस्टिगेट करे, हेयर ऑयल के लिए, वॉशिंग पाउडर के और टूथपेस्ट के, और उनको पता चला कि पतंजलि 33 में से 25 एड्स में झूठी बातें बोल रही है। जैसे उनको पता चला कि पतंजलि के हेयर क्लेंजर और ऑयल के एड में ये दिखाया जाता है कि वो कैंसर प्रिवेंट कर सकता है क्योंकि उसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं है। ये अपना जो केश कांति अलग-अलग प्रकार का शैम्पू और केश कांति ऑयल है, मिनरल ऑयल मैंने कहा था बालों में कभी मत लगाना। केश कांति ऑयल, केश कांति शैम्पू, इसका प्रचार करो। पर ये झूठ था। पतंजलि ने ये भी बोला कि उसके कंपेटिटर्स अपने प्रोडक्ट्स में मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, एक बहुत डेंजरस केमिकल हेक्सेन के साथ, जिससे नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है। पर ये भी झूठ पाया गया। पतंजलि ने पर इन बातों को माना नहीं। उन्होंने कहा कि एक साजिश है सारी फॉरेन कंपनीज की उनके खिलाफ। एमएनसीज की जो एचयूएल के लोग हैं, कोलगेट के लोग हैं, पीएनजी के लोग हैं, तो वो लोग जानबूझ करके प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इनको टॉर्चर करें, प्लानिंग करें। पर पतंजलि की जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई वो आई थी कोविड के दौरान, जब पूरे देश में कोविड की फर्स्ट वेव का कहर था और लाखों केसेस हमें देखने को मिले थे। 23 जून 2020 को Okay, I really don't like this brand. क्योंकि okay, I get it कि हर ब्रांड झूठ बोलता है, हर कंपनी झूठ बोलती है. Of course I get it, false advertising और ये सब फलाने का. I get all of that. I get all of that. But the fact that you use things like nationalism, tradition, culture, ये सारी चीज़ें झूठ बोलने का, that just shows कि you don't even have respect for those things either. जो nationalism, tradition, culture जिसके नाम पे तुम अपने products भेज रहे हो, तुमको उनका भी फर्क नहीं है. You just care about the profit, you just care about the power, and that's fine if you do that. It's just yeah, that's why I don't buy shit from them. पतंजलि ने लॉन्च करी कोरोनिल किट और कहा कि ये आपको कोविड से बचा सकती है। ये कोरोनिल सभी प्रकार के कोरोना में लाभ करता है। ये हमने रिसर्च के द्वारा भी प्रमाणित किया और जिन लोगों ने इसका सेवन किया ऐसे करोड़ों लोगों की हमने इसके द्वारा जान बचाई। कोरोनिल की किट में 3 प्रोडक्ट्स थे। टैबलेट के 2 पैकेट, कोरोनिल स्वसारीवती जो आयुर्वेदिक दवाइयां थी, और एक तेल की बोतल, अणु तेल। इस पूरी किट को आप Hello Paul, क्या हाल है? Thanks for joining man. 55 रुपीस में खरीद सकते थे और चाहो तो तीनों चीजों को सेपरेटली भी खरीद सकते थे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोनिल किट पूरी दुनिया में पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कोविड की, जिसने कई क्लिनिकल ट्रायल्स पास करे। क्लिनिकल केस स्टडी हमने करते हुए जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स थे, सैकड़ों ऐसे रोगियों को हमने औषधि दिया और वो 100% परिणाम रहा है। अब याद है कि उस समय कोई भी कोविड की वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी पब्लिक के लिए। 6 महीने बाद कोविड वैक्सीन के ट्रायल स्टार्ट हुए थे और उससे पहले कोरोनिल किट लॉन्च हो गई थी। लाखों लोगों के सामने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोनिल से 14 दिन के अंदर लोग कोविड से ठीक हो जाएंगे और 69% पेशेंट्स 3 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाए और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए? ये बहुत बड़ी बात। और जिस दिन बाबा रामदेव ने कहा, उसी दिन हमारी सरकार की आयुष मिनिस्ट्री ने कहा कि ना किसी मिनिस्ट्री ना कोई मेडिकल अथॉरिटी ने प्रूव किया है कि कोरोनिल एक्चुअली में काम करता है। उन्होंने पतंजलि को कहा कि उनको अपने एड्स रोकने होंगे जब तक उनको उनकी रिसर्च की सारी डिटेल्स मिल जाती। जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए, इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। हमारी माता जी ने हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, तो हम आपको कंफर्म कर Like this is just making sure that nobody trusts you, and whether you like it or not, Baba Ramdev has become the face of yoga, Ayurveda, not Ayurveda, but काफी हद तक, and it just shines a horrible light on this entire cultural, like Ayurveda yoga, इन सारी चीज़ों पे, because he has become a face of these things, and I know बहुत सारे लोग जो योगा में बिलीव करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो आयुर्वेद में बिलीव करते हैं काफ़ी ज़्यादा, that's fine. The thing is कि
एंड वो लोग जो करते हैं उसमें ज़्यादा बिलीव, वो लोग ये कहते हैं कि हाँ नहीं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रामदेव, it has nothing to do with Patanjali. I just like this. I like yoga. I like doing this, and that's all fine. But most of the people cannot differentiate between the two nowadays. They cannot differentiate between yoga and Ramdev. They cannot differentiate between Ayurveda and Patanjali. वो बलजिंदर सिंह तो हालेलुया बोल के फेल्ड किडनीज ठीक कर देता है. बाबा रामदेव प्रोडक्ट्स आर नो मैच टू इट. ट्रू एंड दैट्स व्हाट आई हेट द मोस्ट. जो लोग उस बंदे पे हंसते हैं जो मेरा येसु येसु करके नाच रहा है, वो लोग उन पे नहीं हंसते जो ऐसे ताली मार के माता का नाम लो ठीक हो गए, उन पे नहीं हंसते. क्यों? वो बिकॉज हमारे रिलीजन से. इट डजंट मैटर. बुलशिटरी इज बुलशिटरी. भाई अगर तुम्हें वहाँ अपनी हिपोक्रेसी नहीं दिख रही तो कहाँ दिखेगी? जब तुम एक फेथ हीलर पे हंस रहे हो और दूसरे फेथ हीलर पे नहीं हंस रहे, देन वेयर एल्स वुड यू, how, like, do you have any genuine bone left in your body? पर ये चीजें बोलने के बावजूद बाबा रामदेव के कुछ और ही प्लान्स हैं. कोरोना के लॉन्च के 4 महीने के अंदर उन्होंने 85 लाख किट्स बेच दी और 250 करोड़ रुपए की सेल्स करी. 250 करोड़ रुपए की सेल्स, ये कैसे हो सकता है? आचार्य बालकृष्ण ने भी बहुत अद्भुत चीज कही. उन्होंने कहा कि इतनी सारी सेल्स हो रही है इस प्रोडक्ट की, इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल है. उन्होंने कहा कि हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स की सेल, चाहे वो घी हो, टूथपेस्ट हो या फिर एलोवेरा हो, वो भी कोरोनल की सेल्स को मैच नहीं कर सकती. यस. डिमांड इतनी ज्यादा थी कोरोनल की कि तेलंगाना जैसे स्टेट में वो कोरोनल किट जिसका रिटेल प्राइस 545 रुपीस था, वो 1800 में बिक्री थी. अब हमारी मिनिस्ट्री ने तो कहा था कि कोरोनल के एड्स बंद करने होंगे, पर न्यूज चैनल्स को क्या परवाह. हर दिन और रात उन न्यूज चैनल्स ने ठूस कर कोरोनल को एडवर्टाइज किया. और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है. अगर न्यूज चैनल्स ने थोड़ी सी भी मेहनत करी होती ना, तो उनको पता चल जाता कि पतंजलि ने कितनी रिसर्च करी है कोरोनल किट को बनाने के लिए. जैसे कोरोनल का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, वो हुआ था जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहां उनका सैंपल साइज बस 100 लोगों का था. जबकि रेमडेसिविर जो पहला कोविड-19 का ट्रीटमेंट था जिसको अप्रूव किया था यूएस के रेगुलेटर ने, उसका सैंपल साइज करीब 1400 पेशेंट. You know, Saroj Joshi proposed a girl. No, I don't know. ऐसा दूसरी प्रॉब्लम थी कि स्टडी में जो उन्होंने कई पेशेंट्स चुने, वो या तो एसिम्प्टोमेटिक थे या उनके सिम्पटम्स बहुत ही कम थे, जिस वजह से कई डॉक्टर्स ने कहा कि ये लोग तो बिना दवाई के ठीक हो जाते. तीसरी प्रॉब्लम थी कि कोरोनल ने पहली ट्रीटमेंट करवाई थी पेशेंट को 29 मई को, और 1 महीने के अंदर 23 जून को उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया. तो रिसर्च और लॉन्च के बीच में 1 महीने से भी कम का समय. स्टार्टअप को लॉन्च कैसे करना चाहिए, पतंजलि से सीखना चाहिए. और ये करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. मैं आऊंगा, आपसे सीखूंगा. इंडिया की मेडिकल कम्युनिटी भी बोली थी कि ये हो क्या रहा है. एनआईएमएस जयपुर जहाँ ये रिसर्च हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हमारे क्लिनिकल स्टडी से कुछ लेना देना नहीं है. उनके चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में कोरोना का कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ ही नहीं, हमने किसी सीरियस पेशेंट को एडमिट ही नहीं किया था, और बस 100 एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को आयुर्वेदिक दवाइयां दी गई थी जिनको स्पॉन्सर किया था पतंजलि ने. लेकिन निम्स ने कहा है कि उसने कोरोनिल का परीक्षण नहीं किया है. निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि उनकी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ तुलसी, नीम और गिलोय जैसी आयुर्वेदिक औषधि का परीक्षण कोरोना मरीजों पर किया था. ये सब सुन के वही आचार्य बालकृष्ण जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि How the fuck are they still operating? I don't understand. कोरोना से कोविड ही हो सकता है, सडनली उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं. तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं. हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए. तो इसमें इस तरह का कंफ्यूजन वाली तो कोई चीज है ही नहीं. स्वामी जी बहुत मजा आया. ये कंफ्यूजन जानबूझकर फैलाया गया. एक तरफ आयुष मिनिस्ट्री कह रही थी कि इस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने अप्रूवल नहीं दी, दूसरी तरफ सरकार के हेल्थ मिनिस्टर इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे. एक तरफ न्यूज एंकर्स कहते हैं कि कोरोना के एड्स अब बंद कर दिए जाएंगे, दूसरी तरफ वो खुद ही सेम न्यूज सेगमेंट में उसके बारे में बात कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं. अब अगर आपकी एज मेरी जितनी है तो आपके पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स भी न्यूज चैनल ही देखते होंगे. अब क्या वो लोग एनआईएमएस जयपुर या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात मानेंगे या फिर हमारी न्यूज एंकर्स की जो हर दिन कोरोना की बात कर रहे थे. स्वामी रामदेव मिल गया रामबाण. उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने की घोषणा कर दी है. ये कमाल जो हुआ उस पर बस भरोसा करने में थोड़ा समय लगा है. आप समझते हैं इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाती. अब न्यूज चैनल से क्यों कर रहे थे? ये कितनी बड़ी खबर होगी आप सोचिए. कोरोना की संजीवनी, कोरोना का दवा, पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं, कोई नहीं खोज पा रहा. हमारे यहाँ आयुर्वेद का कमाल देखिए. क्योंकि वो कोरोना में विश्वास करते थे? नहीं, क्योंकि वो पैसों में विश्वास करते थे. पतंजलि न्यूज चैनल का सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स में से एक है. 2017 की एक रिपोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने 25% एड्स मेजर न्यूज चैनल्स पर खरीद लिए थे. इस स्ट्रैटेजी के बारे में पतंजलि के खुद एम्प्लॉइज ने बात करी है. जैसे पतंजलि के स्पोक्सपर्सन एसके तिजारावाला ने कहा कि हम मानते हैं कि पतंजलि को ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स करनी चाहिए, और इस चीज के लिए न्यूज व्यूअर सबसे बेस्ट है. न्यूज एंकर से छोड़ो, देश के बड़े-बड़े मिनिस्टर्स भी इस चीज को प्रमोट करने लग गए. फरवरी 2021 में जहां एक तरफ लोग कोविड के कहर से तड़प रहे थे, दूसरी तरफ बाबा रामदेव, देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी के साथ ये कह रहे थे कि कोरोना WHO सर्टिफाइड है. कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट, कोरोना के देश के हेल्थ मिनिस्टर. Oh my God. What are we going to do? कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ ही कोरोना काम करती है. इंटरनेशनल पैरामीटर्स उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना. न्यूज चैनल्स ने खबर पकड़ी और वो इसको हर दिन चलाने लगे कि देखो कोरोना WHO अप्रूव्ड है, जबकि WHO खुद कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. World Health Organization has clarified in a tweet that it has not reviewed or certified its efficacy. बाद में आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि हमने झूठ नहीं बोला, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. और यही स्ट्रैटेजी रही है पतंजलि की स्टार्टिंग से कि वो झूठ बोलते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने जानबूझ नहीं किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जी. जिस समय हमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, उसी समय हमारी गवर्नमेंट एंटी साइंस प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही थी. अब महाराष्ट्र जैसी स्टेट ने जरूर कोरोना को बैन करने की कोशिश करी. पाकिस्तान के बाद महाराष्ट्र ने भी पतंजलि की कोरोना दवाई पर पाबंदी लगा दी है. इन राज्य सरकारों का मानना है कि जब तक केंद्र सरकार इस दवा को हरी झंडी नहीं देती तब तक इसकी बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी. पर हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया कि वो 1 लाख कोरोना किट्स फ्री में बांटेगी कोविड के पेशेंट्स को. बाबा रामदेव का क्या रिस्पांस था? ये सारे अटैक्स वेस्टर्न मेडिसिन की चाल है. एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है. जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है. एक समय उन्होंने ये भी कहा भाई like I legit have no words. मैं जब मैजिक परफॉर्म करता था मैंने कुछ लोगों को मैजिक दिखाया था, जो लोग थोड़े ज़्यादा गांव वाले एरिया से थे. वो लोग बीच बीच में से पूछते हैं कि लाइक ओ क्या ये कुछ असली है, क्या ये मतलब ट्रिक है, तो दे हैव दैट डाउट.
This almost never happens, मतलब दिल्ली जैसे एरिया में almost never. Maybe it's just a side effect of lack of education. I don't know what the fuck this is. I don't know why people don't think of it as a much bigger problem. Ramdev is so addicted, 69%, though he feels so shady. What? कि कोविड की वैक्सीन से 1000 डॉक्टर्स की मौत हुई है। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल का समाचार है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लिखा कि आप बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन लो, और इसी का अंजाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सॉरी बोलना पड़ा है। 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनके जनरल सेक्रेटरी जयेश लल्ले ने पिटीशन दर्ज करी पतंजलि, आचार्य बालकृष्ण और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये सब लोग एलोपैथी को टारगेट कर रहे हैं। ये केस मेनली इस एड के बारे में था जो पतंजलि ने चलाया था, जब वो इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे। इस पिटीशन ने क्रिटिसाइज किया हमारी सरकार को कि उन्होंने पतंजलि के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जब ये कंपनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में इस केस की सुनवाई स्टार्ट करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद के बारे में बात नहीं करेंगे, पर इतनी तो ऑक्सीजन है, ले हवा में से वर्ड्स बाय रामदेव when people were dying of lack of oxygen cylinders. भाई मैं लिटरली में मजाक नहीं कर रहा, तुझे पता है बहुत साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ था, उसने मुझे एक जोक सुनाया था कि 2 लड़कियां होती हैं, वो बंदा काफ़ी बेटर था सुनाने में। 2 लड़कियां होती हैं, एक लड़की को डिप्रेशन होता है, तो उसको कहती है यार तू डिप्रेस्ड क्यों है, तेरी तो आसपास देखना कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितनी खुशी है, कितनी ये है, कितना वो है, सारी चीज़ें कितनी मस्त मस्त हैं। तो दूसरी लड़की उसका कहते हैं चूतिया तुझे अस्थमा क्यों है, तेरी तो ऑक्सीजन है, यहाँ से ले ले। That was the joke. This guy legit said it. This guy literally said it. That's fucking retarded. मैंने देखी वो क्लिप, 2 सिलेंडर दे रखे भगवान। अरे मेरे भाई, like especially I wouldn't go as far as saying कि भाई ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए। I wouldn't go as far as saying that. That would be stupid to do as well. बट भाई एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश में, लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट एजुकेशन के बाद भी इफ़ यू वांना होल्ड ऑन टू क्लिंग ऑन टू द कल्चर्स ऑफ ओल्ड, इट विल बी ईजी टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू। वंस अगेन मेरे ऐसे इशू पे लोग हंसेंगे, लेकिन वो ताली बजा के ठीक करने वाला बाबा के पास जाएंगे, ठीक है। मेरे यीशु पे हंसेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की रिकमेंड करी हुई रिंग पहनेंगे अपनी उंगली में। मेरे यीशु पे हंसेंगे, लेकिन वो रियल हिट वाला पॉडकास्ट देखेंगे एस्ट्रोलॉजर के साथ कि तुम्हारी बंदी चीट कैसे कर गई। कोई बात नहीं नीलेश भाई, अपने देश के लोग इतने इमोशनल हैं कि इनको इमोशनली मैनिपुलेट करके कुछ भी बेच सकते हैं। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। ट्रू बट आई वुडंट से इट्स कोई बात नहीं। आई थिंक दैट्स फकिंग हॉरेंडस। पर हम ये जरूर कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि वो पतंजलि पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा देंगे अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट के जरिए ये मार्केटिंग करने की कोशिश करी कि वो किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत आप 54 डिजीजेस के बारे में ऐड नहीं दे सकते, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट डिजीजेस जिनका कोई मेडिकल क्योर मिला नहीं है। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम आपकी पूरी बात समझते हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वी अंडरस्टैंड। अगले दिन बाबा रामदेव ने क्या किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उधर ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर दिया। ये प्रोपेगेंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। फिर दिसंबर 2023 में पतंजलि ने एक और प्रिंट एडवर्टाइजमेंट निकाला जहां उन्होंने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करी, जहां उन्होंने ये कहा कि वो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा जैसी बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि आपने ये सब कैसे कर दिया, हम आपके सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा देंगे एडवर्टाइजमेंट्स के। सीनियर एडवोकेट विपिन संघी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करी कि पतंजलि जैसी कंपनी टूथपेस्ट भी बेचती है, तब सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगाओ एड्स का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो प्रॉब्लम, ठीक है, पर हमें एक अपॉलजी चाहिए पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण से। पर आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रिप्लाई नहीं किया और उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के मीडिया डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खबर नहीं थी, इस वजह से उन्होंने गलत ऐड छपवा दिया। अभी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 48,000 करोड़ है, उसके मीडिया डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या था। शायद इस वजह से क्योंकि पतंजलि के एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसा नहीं मिलता। इन सारी चीजों की वजह से 9 अप्रैल 2024 यानी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव से कि आप हमारे कोर्ट में आओ और हमें एक अनकंडीशनल अपॉलजी दो। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ भी बोला कि आप कर क्या रहे थे जब ये कंपनी ऐसे एड्स डाल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपॉलजी रिजेक्ट भी कर दी और उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि आपने अपने एफिडेविट में शायद फेक इंटरनेशनल टिकट दिखाई है, ये कहने के लिए कि आप कोर्ट में आ नहीं सकते खुद। अब पतंजलि कोई अकेली कंपनी नहीं है जो ऐसे एड्स चलाती है दवाइयां बेचने के लिए। कई एलोपैथी कंपनी भी बहुत अजीब चीजें करती है। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इन कंपनीज को वार्न भी किया था कि उनको डॉक्टर्स को घूस नहीं देनी चाहिए अपनी दवाइयां बिकवाने के लिए। हमें इन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पर इनमें से कितनी कंपनीज को हमारे मिनिस्टर्स प्रमोट कर रहे थे न्यूज़ चैनल पर, इनमें से कितनी कंपनीज को न्यूज़ एंकर्स प्रमोट कर रहे थे जब उनके प्रोडक्ट का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। इनमें से कितनी कंपनीज ने फर्जी प्रोडक्ट पर 250 करोड़ रुपए कमाए और हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। बहुत दुख की बात है कि एक आदमी जिसको हमारे देश में नॉट ओनली दैट, कितने लोग कर रहे थे, दैट इज अ कंप्लीटली फेयर आर्गुमेंट, बट उतने को भी करनी चाहिए एंड इसको भी करनी चाहिए। अगेन डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ यू डूइंग हॉरिबल थिंग्स। एंड आई डोंट थिंक एटलीस्ट किसी बड़ी फार्मा ने एलोपैथी के टाइम पे कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट तो करी है। आई डोंट थिंक दैट हैपेंड। दिया क्योंकि उन्होंने करोड़ जिस बंदे ने, डू यू गाइस रिमेंबर वो बंदा जिसने वो बॉर्नविटा के अगेंस्ट कुछ बनाया था एंड उस पे केस हो गया था, पता नहीं क्या क्या, उसका बहुत बड़ा डील हुई थी एंड व्हाटएवर हैपेंड राइट कि इफ इट्स हेल्दी फॉर यू और नॉट। भाई वो बंदा उस टाइम पे अगर पतंजलि का ऐसे बनाता ना, लोग इतनी गालियाँ देते उसको। एसएस प्रो आर्ट मॉनिटर यूज़ करते हो क्या? हाँ वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, 27 इंच वाला 2K वाला।
करोड़ों देशवासियों को हर दिन योग सिखाया, आज उनको How पैसे the और fuck do you know that? पावर की इतनी लत लग गई है कि उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि कोविड के टाइम पर वो पूरे देश को क्या बेच रहे हैं। वो सन्यासी जिन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त किया और जो हिमालय का ध्यान करने के वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। पर हमारी सरकार का क्या? बहुत आसान होता है हमारे साइंटिस्ट को प्रेस करना जब चंद्रयान सक्सेसफुल हो जाता है, और जब वही सरकार चुपचाप बैठी रहती है, जब एक ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट किया जाता है, जब लाखों लोगों को साइंस की जरूरत है, तब हमारी साइंटिस्ट की याद नहीं आती हमारी सरकार को। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि अंधभक्ति करने से हमारी पॉलिटिक्स में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। ये अंधभक्ति की वार्निंग हमें पॉलिटिक्स में ही नहीं हर जगह अप्लाई करनी चाहिए ताकि हम कभी बेवकूफ ना बने। True. Alright, fucking hell. भाई साहब नींद आ रही, मैं जा रहा हूँ सोने guys. Thank you very much for joining the stream. अगले 2 दिन बाद मिलेंगे 17 तारीख को. How the fuck do you know about the SS Pro art thing? Hello, Joffrey. Goodbye. मैं जा रहा हूँ सोने भाई, तगड़ी नींद आ रही है, सुबह जाना है मैंने, 5-6 बजे निकलना है. शूट है सूट, 2 दिन बाद मिलते हैं 17 तारीख को. How to be high featuring the best Arnab Goswami birthday. What the fuck is this? By Johnny. Every night, Jay and me sit and watch the news hour. इतने सारे केस बुलाकर अर्नब की अदालत शुरू होती है, और ये क्या कब रिस्की होता है क्या? अर्नब के मेहमान भी तो उनके शो में आने का रिस्क उठाते ही है. ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी गीदड़ की तरह छिपे क्यों हो? तो साफ सुन ले, पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में बिकने वाले दलाली जो तुम नहीं करते. I don't insinuate, I never do. इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती. I don't point fingers, I never do. क्या चाहते हो तबलीगियों? आवाज कम. I don't make false charges, I never do. तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर. I'm not naming the accused, I never do. अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग दो. ये कोई नहीं खा रहा है. ये कोई नहीं खा रहा है. You have established a kangaroo court by the way you have drawn up the members of this panel. अगली बार करूंगा. थोड़ा पता तो लगे. नहीं करूंगा. तो इसको दबाओ. I would ask you. This, oh my god, like you have no fucking spine. ब्रदर वराटी का न्यू वीडियो देखा क्या? हाँ यार देखा, मैंने देखा. आप शक हो जाओगे. ऑलराइट. गायब 2 दिन के लिए कहाँ चले भाई? शूट है यार. मैं आज 4:30 बजे उठा था फॉर गोइंग आउट स्टेशन आफ्टर वॉचिंग योर कंप्लीट स्ट्रीम yesterday. I'm sorry, Joffrey. You, the moderator, to de-escalate your language. चीख कर चिल्लाऊंगा गीदड़ की तरह. छिपे क्यों हो? आओ बहस करो उद्धव ठाकरे. यार तुम लोग मुझे बस ये बताओ, जाने से पहले जब मैं सुनता हूँ ना ऐसे किसी को पॉलिटिकल टाइप की स्पीच करते हुए, and that's what we need to do for this nation, for the people, for this ideology we believe in. ये जो रेट्रिक्स होते हैं जो स्पीच वाले, whenever I like listen to someone speak like that, जब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये बंदा एक स्पीच के फॉर्मेट में बोल रहा है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट देम. डज दैट हैपन विथ यू एज वेल? जब वो एक स्पीच वाला वो केडेंस आ रहा था ना, राइट, आई हैड अ ड्रीम, नाउ अगेन दैट वाज अ डिफरेंट टाइम. उसकी बात नहीं कर रहा मैं, राइट? मार्टिन लूथर किंग की बात नहीं कर रहा मैं. But I don't know, I find it difficult to trust people when I clearly see they are acting in their speeches. Or maybe not acting, maybe that's unfair, but when they are raising the base level of their emotions for the speeches, I find that a little weird. कोई नहीं बताएगा मुझे, बता दो यार. मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं बता रहे.
मेरी आंख बंद होनी शुरू हो गई. ये क्या हिंदी नेपाली? ऑलराइट. मुझे ट्रस्ट विद डेस्टिनी में गूज बम्स आ जाते हैं. ट्रस्ट विद ये क्या है? ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या है? क्या पूछ रहे थे भाई आप? अरे कोई नहीं, छोड़. कैसी जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह. भाई इस मूवी में इतना स्टूपिड था ना वो, जब सर चलते and when they all go like what, shut the fuck up. ये 300 चल रही है क्या? मतलब 300 में it makes sense, they're the fucking soldiers, they don't care if they live or die because of their leaders said so. Like इसमें these are like fucking employees. BJP manifesto आ गया, they talked about getting free electricity. That's nice. पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा. आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया जला दूंगा बाबा. जसले मेरो बाबा माथि गोली चलायो, बलबीर सिंहलाई गोली चलायो, म बाचा गर्छु. आफ्नो हातले घाँटी काट्ने छु उसको. अबदेखि तपाईलाई के भयो भने नि दुनिया जला. I think it's better than a lot of English in Hindi वाली dubbing से, नहीं? जब वो बोलता है सोल ऑफ द नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइनली फाइंड्स utterance. मैंने कभी नहीं सुना. नेहरू की इंडिपेंडेंस स्पीच, मार्टिन लूथर किंग की स्पीच पता है ये बंदे को, इंडिया की नहीं भाई. उसमें भी मुझे यही पता है, आई हैव अ ड्रीम, दैट्स ऑल आई फकिंग नो. ऑलराइट, फक यू. आ गया ना वही बात, मैं इंडिया की नहीं भाई. तुम जैसे लोग होते हैं जो साले पूरे टाइम पतंजलि के प्रोडक्ट्स लेते हैं, कोरोनिल एडवर्टाइज करते हैं. तुम जैसे लोग होते हैं, ओ तो इंडिया को तो पता नहीं तुझे. फक यू. Just for this was a speech Nehru triced. Okay, मुझे लगा उन्होंने वो कर दिया टाइप जॉफरी ने. Made after India just got independence. All right. नेहरू की इंडिपेंडेंस स्पीच, मतलब ने कुछ स्पीच बताया. ओके, गॉट. इससे बकवास मूवी नहीं देखी मैंने. नहीं यार, कम ऑन, लेट्स बी रियल. एनिमल से बहुत ज़्यादा बुरी मूवीज है. आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनिमल, but it's better than a lot of Bollywood movies. I'll say that for sure. Which come out these days. कोरोनिल से सब सही हो जाता है. हाँ पता है मुझे, तुम लेफ्टी हो. Joffrey is so far left, he even fap with his left hand. कब तक हो? बस जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ. 11:15 सो रहा था मैंने, मैक्स 11:25 पे चला जाऊँगा यार. तुम लोग आए हो अभी. इजराइल पे कर दी स्ट्राइक ईरान ने. I hope nothing horrible happens. Fucking hell. Oh my god. Hopefully nothing happens. शायद सिद्धू करेगा नॉट नोइंग पे स्ट्रीम. शायद, इट्स अ बिग शायद, कल रात को शायद. तो विल बी इन द सेम होटल रूम. तो राइट लाइव. अगर सिद्धू करेगा तो मैं डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा. पर ये नहीं पता, मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं पता किस बारे में करेंगे तो. बाकी आई डोंट नो. देयर इज अ बुक, एक बुक है द फोर्थ टर्निंग. पढ़िए किसी ने? रिगार्डलेस पढ़ियो ना पढ़ियो, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, द बुक टॉक्स अबाउट हाउ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, लॉन्ग सेगमेंट्स, जिसका जो फेजेस हैं वो 80 से 100 साल के होते हैं, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 20 to 25 ईयर्स ईच. चेक डिस्कॉर्ड, उसको इंडोक्ट्रिनेट करता हूँ कल से. ओके, ओह देयर यू गो. Long years ago, we made a tryst with I have seen this, I just don't remember, by the way. Alright, you fucking people. destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour,
When the world sleeps, India will awake to life. Yes, I completely remember this part. When the world sleeps, India will awake. I completely remember that. जी इनके पास कलर टीवी नहीं था, कलर कैमरा नहीं था, मलिका हिंद. And freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people. Isn't that fucking amazing that we had women in parliament from the very first day or something? And to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity. And these women actually made commendable points during the Constituent Assembly debates. Oh, okay. I didn't see any of that. But yeah, it is fucking amazing. Kya hal hai bhai? Sir, thanks for joining me, bhai. Opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body. India, Pakistan, Bangladesh have had a female head of state, but the US. And guess which is the most highest performing nation out of all of the ones you mentioned? Fuck you, Jafari. I would not take your point in any serious way. By the way, that was my fucking question. जब आजकल, again, I'm not talking about people in the past. आजकल जब लोग बात करते हैं in a speech cadence में बोलते हैं, मैंने ऐसा, I had a dream, नहीं, I had a dream, और you know, और क्या होता है, और अलग-अलग speeches कैसे होती हैं. जब लोग बोलते हैं ना, I will not stand for this, ये सारी चीज़ें, like I find it difficult to trust those people. आजकल जो ऐसी बात करते हैं. Obviously, India under Modi. True. Representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. The reason for my distrust to the people making speeches in very speech-like manner is because it is like clear to me that they are doing this to, you know, awaken an emotional response within you. चाहे वो motivation हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया. I like when interviews can do this, but not when Modi does it. Alright, that's fine. Now, like I'm not gonna criticize like people like, you know, are freedom fighters. I'm not gonna do that. I have more I don't know, sense of respect, I guess. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving. और उस टाइम पे यार हर किसी को नहीं पता था, खैर आज भी शायद हर किसी को नहीं पता, उस टाइम पे हर किसी को नहीं पता था ये स्पीचेस की टेक्निक्स होती हैं या इस तरीके से बोलना इसलिए होता है लाइक उस टाइम पे व्हेन पीपल वुड हेयर दिस पीपल, है ना, जब आम जनता सुनती होगी नेहरू जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, तो लोगों को एक वो चीज़ आती होगी, भाई वो जो बोलते हैं ना तो ऐसा हो रहा है. लेकिन आज के टाइम पे तुम लोगों को प्रेस में सुनते हो, ये सब सुनते हो, तुम्हें क्लियरली दिखता है कि नॉर्मली तो ये बंदा ऐसे बात करता है, लेकिन स्पीच में बंदा ऐसे बात करने लगता है, स्पीच देने लग जाता है, राइट. तो आई जस्ट फाइंड दैट अ लिटिल वियर्ड. So that we might fulfill the pledges we have so often taken
and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of I am becoming death, destroyer of words. Sounds same. True. opportunity. But okay, I might push back on that. I might. देखता हूँ अभी देखता हूँ. अरे कहाँ गए? The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world. एक कौन वुमनाइजर इतना एक्सेंट छाड़ रहा है? नेहरू जी कैसे कहोगे तुम? गांधी रेफरेंस. All right. अपना नाम पढ़ा मैंने ऐसे. You know why every news channel uses red color in their UI and graphics? It's more attractive. World, or the danger thing? For all the nations and peoples are too closely knit together. प्रेसिडेंट गांधी बिना कुछ हो सकता है क्या? Today, for any one of them to imagine that it can live apart. Peace has been said to be indivisible. So is freedom. So is prosperity now. And so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. To the people of India. So you thought, sir, to wipe every tear from every eye. All right, Gandhi was oh. Whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. Jail King Joffrey. I'm gonna push back on this one because this guy Oppenheimer wasn't exactly an orator. He wasn't really a public speaker or anything like that. So yeah, I mean the words are heavy, sure. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the He's reading or what? Is he reading? line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I think that not only, well, I think Angrezi bolte that's a weird translation, but dude, it definitely fucking fits. I suppose we all thought that one way or another. That definitely fucking fits. So yeah, I'll push back on that one a little. चलो नमस्कार जी. Lamest comeback line ever. Nolan ने लिखा Nolan. So you came back to die with your city. I came back to stop you. That was really bad. Oh my god, that was really bad. That was really bad. Christopher Nolan, कैसे लिख दे भाई? कैसे लिख दो तुम? Strictly Politics में जॉफरी ने भेजा है Riddles in Hinduism. भाई साहब अच्छे भेज रहा था तो. ये पढ़ लेने लेस. इसके टाइटल में रिलीजन भी है. ये मूवी रिकमेंडेशन दो यार कोई थ्रिलर हॉरर का. यार थ्रिलर हॉरर ना मैं इतनी ना देखता नहीं.
और आजकल तो मैं मूवीज़ इतनी ज़्यादा नहीं देखता। मूवीज़ की मेरे से बात मत करो अगर तुमने फाइट क्लब नहीं देखी, अगर तुमने चार्ली कॉफिन की कुछ मूवीज़ नहीं देखी, अगर तुमने हॉरर की बात मत करो अगर हेरिडिटी नहीं देखी, और ऐसी और भी उनके मेकर्स ने बना रखी हैं। लाइट हाउस, वॉच लाइट हाउस हैप्पी एंड वेट व्हाट द फक यू शुभदीप। ठीक है, आई विल रीड दिस वन रिडल्स इन हिंदुइज्म, दैट्स फॉर श्योर। चलो मैं जा रहा हूँ। नमस्कार भाइयों बहनों, बहुत ही खुशी हुई तुमसे आज मिलके। शायद कल स्ट्रीम होगी अगर नॉट नोइंग पॉडकास्ट चैनल पे, तो मैं उसमें होऊंगा। अगर नहीं होगी तो शायद मैं कर लूँ, मुश्किल है, नॉट वेरी लाइकली, बट आई लेट यू नो ऑन डिस्कॉर्ड, राइट? चिलिंग यो, बढ़िया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। आई विल सी यू 17 को पक्का, होपफुली 17 से पहले, ऑलराइट? नमस्कार। डिस्कॉर्ड पे मैं वो कर दूंगा, होगा भी हेरिडिटी देखी आफ्टर योर एंड विवेक्स रिकमेंडेशन, ऑलराइट? कैसी लगी? इतनी जल्दी मैं तो अभी आया यार, सुबह जाना है, शूट है। ओके, लाइट हाउस देखो, गुड नाइट। डिस्कॉर्ड, हाँ देखा मैंने तेरा। फ्रिशी यूर चिलिंग, ओह समवन न्यू जॉइंड, हु जॉइंड? अच्छा वेट, हु जॉइंड, हु रिसेंटली जॉइंड? वह 120 कैसे हो गए? 119 थे मेंबर्स। हु द फक जॉइंड? शुभ रात्रि, गुड नाइट। बहुत अच्छी थी, यप। ओके बाय, I will see you on the 17th night, all right?